Okay, good evening, everyone. It's a third lecture for the class for the topic magnetic field due to current. And from the previous class, we know from Biot and Seward law, magnetic field at any point, that is mu naught by 4 pi I dl sine theta by r square. And at the same time, if current carrying conducting wire means the direction of current or the elementary length dl and the position p are in the same line, so theta is 0 degree, and as the theta is 0 degree, so magnetic field is 0. Now see here, one thing is very important, so we can write it as an important note. Okay, here basically we have to find out the two relations. One is current, another one is magnetic field. So basically we have to find out the relation between current and magnetic field, and by using right hand curl rule. What is the right hand curl rule? If curl is the current, thumb is the magnetic field. I repeat, if curl is the current, thumb is the magnetic field. And if curl is the current, thumb is the magnetic field. I repeat, if curl is the current, then thumb is the magnetic field. Or if the thumb is curl is the magnetic field, thumb is the current. So that means if the current is clockwise, sorry, anti-clockwise or clockwise. So here curl is the current. If curl is the current, then thumb is the magnetic field. So we can say the magnetic field is outward. Outward means dot. And here the magnetic field is inward. Inward means cross. So we can represent the direction of magnetic field in that way. This is the first part. Second thing is that if this is the current, means if current is the straight line, means if thumb is the current, and it is outward, then the magnetic field is like it is entering and leaving. So as it is entering, we can write cross, and then from this अंदर गया फिर इधर से ये बाहर आया, इधर हम लोग लिख सकते हैं डॉट. इसका मतलब क्या है, ये डॉट 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 पीछे से आया और इधर से ही ऐसे गया. मतलब हम ऐसे करके सोच सकते हैं, if you think that pen is the current, so curl is the magnetic field. So how it will be look? It will be look like this. And if it will be this, तो देखो थंब क्या गया नीचे की तरफ थंब, तो कर्ल क्या होगा ये, मतलब हम लोग अगर ऐसे देखेगा तो current is moving this way and the magnetic field is this. So current is this one and this is the magnetic field. And one more thing, although it's not help you here, it help you in the another one, that's the electromagnetic induction. The second one, the third one, which is help you in electromagnetic induction. If you have anti-clockwise current, then it produces north pole, and if you have clockwise current, then it produces south pole. So these three things are very important. You can stick it. I'm just stopping the record now. With the help of this, I want to give you one question, and you have to tell me what is the answer. Because if you understand this one, then you understand the direction of magnetic field. So suppose you have current in that manner. ये है current number 1, ये है current number 2, ये है current number 3, ये है current number 4. So you have 4 current carrying conducting wire, or you can say 4 wire. So suppose I want to show you a magnetic field at this point. Suppose P, Q, R, S, T. These are the 5 regions where you have to find out the
direction of magnetic field, whatever be the magnitude we go see it later on. First you decide the direction. So let this point, see for this one current is this direction, so this side is cross, so we can write for B1 first wire the direction is cross. Now the second wire again the direction is crossed, so B2 also crossed. For the third wire, see outward means dot, so B3 is dot, and for that one this is outward, so B4 is dot. So I show you in one place, you can show me at Q, R, S and T what is the direction of magnetic field, and for that I give you 4 minutes. सर हो गया. देखो obviously this one is for the first one, so B1 dot, B2 भी इस साइड में है, B2 डॉट, इसके लिए भी इस साइड में है डॉट, B3 डॉट, इसका भी ये इस साइड में, सर एक जोड़े बोलपेन, B4 डॉट, देखना B1 डॉट, B2 डॉट, B1 एदिके देख, B2 एदिके, B3 एदिके, B4 एदिके, तो चारखानार জন্য কি হবে ডট হবে, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ স্যার। This side is B1, so B1 means B1 dot, আর এই সাইডে কি হবে B1 ক্রস হবে, তো B1 ক্রস, শুনতে পাচ্ছিস? শুনতে পাচ্ছিস? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? Yes sir. এবার এইটার দেখ, এটার এই সাইড কি হবে, এই সাইড হবে ক্রস, তো B2 ক্রস, এই সাইডে সব B2 ডট হবে, B2 ডট, B2 ডট, B2 ডট, এই সাইডে কি হবে B3 ডট, B3 ডট, B3 ডট, আর এই সাইডে কি হবে B3 ক্রস, B3 ক্রস, B3 ক্রস, B3 ক্রস, এটার এই সাইডে B4 ক্রস, B4 ক্রস, এখানে B4 dot, B4 dot, B4 dot. So in that way we can find out we have to find out magnetic field due to a circular current carrying conducting wire. So we put it this way, that means the magnetic field like this, and suppose the current is moving like this, this is the center, this is the radius, and we have to find out magnetic field at a distance, at point P, which is at a distance x from the center. तो ध्यान से देखो, मानो करंट ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऐसे गया, so this is the direction of magnetic field. हाँ देखो, सॉरी इसको ऐसे कर दो, ये करंट गया, ये सामने आया, so it will be look like this. एक मिनट, मैं चाह रहा हूं करंट ऐसे जाए, हाँ तो ऐसे जाए, इसको मैंने सामने रखा है, तो ये नीचे आएगा, इसको मैंने पीछे रखा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस डिस्टेंस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और देखो अगर हम इसका डायरेक्शन ले, ध्यान से समझो, हाँ ये करंट जा रहा है, सो एट द टॉप ये इधर गया, और ये है मेरा टेंजेंट, सो करंट इज मूविंग लाइक दिस एट द टॉप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये मेरा टेंजेंट है, सो व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन टेंजेंट एंड द, ये मेरा स्लैंट है और ये मेरा, तो कितना होगा एंगल, कितना एंगल है बोलो, कितना एंगल है, हाँ, so you all understand the angle is 90 degree. इसको ना इधर से ना थोड़ा उल्टा दिखेगा, ऐसे ही दिखा दो, तो इधर है ये इधर है, तो ये ऐसे गया, ऐसे जब आ रहा है is this point,
suppose this is the dl vector for that small elementary part, and this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. This angle is 90 degree. अब देखो ध्यान से समझो. हाँ, सपोज ये तुम्हारा लेंथ वेक्टर है और ये मेरा डीएल है. तो देखो ये जो सपोज ये मेरा डीएल है और ये मेरा लेंथ वेक्टर है. सो ऑब्वियसली इट विल बी 90 डिग्री. ये सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पे टेंजेंट है और ये तुम्हारा स्लैंट है. तो ये डीएल है. अब इस डीएल का द फॉर्मूला इज डीएल क्रॉस आर. तो इस पॉइंट पे ये मेरा प्लेन है, ये डीएल है और ये स्लैंट वेक्टर है. ये मेरा डीएल है, ये स्लैंट वेक्टर है, मतलब आर पोजीशन है, ये डीएल है. तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? देखो परपेंडिकुलर होगा. मतलब अगर मैं इसको और इसका साथ मिला दूं तो ये एक प्लेन बन रहा है ना. इस प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? परपेंडिकुलर. सो दैट इज आई एक्चुअली वांट टू शो यू. सो ध्यान से समझना. हाँ, यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा. क्यों? देखो डीएल क्रॉस आर, सो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डीबी. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डीबी. आप देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं तो ये 90 माइनस थीटा. सो अलोंग द बेसिस कॉस db cos theta and perpendicular with the basis db sin theta. अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है. ये अगर 90 माइनस थीटा है, ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा मतलब ये थीटा. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हें दिक्कत होगा ये वाला एंगल को समझने में. तो हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए इस एंगल को नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर ये वाला एंगल लेते हैं, देखो तुम्हारे लिए इजी क्या होगा. इफ वी टेक दिस एंगल इज थीटा, दिस इज, ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये मेरा थीटा होगा. ये समझने में ज्यादा आसान होगा. इधर में दोनों एंगल में यू आर कंफ्यूज्ड, सो इसीलिए हम लोग इधर वाला एंगल लिया, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा. तो अगर इधर वाला कंफ्यूजन नहीं होगा तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो अब ये वाला क्या हो जाएगा? अलोंग द बेसिस dv cos थीटा एंड परपेंडिकुलर विद द बेसिस db sin थीटा. मेरा मोटिव समझ में आया तुम लोगों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सिमिलरली इफ यू कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट हियर, सो अगेन 90 डिग्री db. हम लोग अब इसको लिया है थीटा, तो इधर में हो जाएगा db cos थीटा और इधर में जाएगा db sin थीटा. तो ऐसे करके क्या होगा, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉट ओनली टू सो मेनी, क्योंकि देखो अगर ये एक सर्कुलर लाइन है तो मैंने एक टॉप एक बॉटम लिया है और ये पॉइंट लिया है. तो सब कोई, अगर हम ये सर्कल है तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, सो एक झाड़ू जैसा दिखेगा कि या यू गेट ए कोनिकल शेप. ये शेप है और यहाँ से ऐसे करके लाइंस आ रहा है. तो हर एक लाइन का क्या होगा, एक अलोंग द बेस होगा, एक परपेंडिकुलर विद द बेस होगा. हर एक बार db cos थीटा जो है, हर एक बार db cos थीटा लोअर एंड अपर को कैंसिल आउट करेंगे. तो इसको हम लोग कहेंगे कैसे? इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि फ्रॉम द फिगर ईच कंपोनेंट db cos थीटा, from the figure each component db cos theta for lower half cancelled by each component db cos theta for upper half. Is it okay? Okay. So now what we can say, कि from figure magnetic field at point P is dp equals to db sin theta. लेकिन अगर तुम्हें P चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? टोटल मैग्नेटिक फील्ड. So you can write total magnetic field at point P is magnetic field of P, that is the integration of dB sin theta. क्यों? क्योंकि dB जो था for each component था, लेकिन तुम्हें पूरा का चाहिए, पूरा रिंग का चाहिए.
तो पूरा रेंज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, dB sin थीटा। अब देखो इस dB sin थीटा में dB का वैल्यू कितना है, dB का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl। साइन देखो 90 डिग्री है, अगर चाहो तो तुम यहाँ पे साइन 90 लिख सकते हो, साइन 90 बाई ये दोनों के बीच के डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या है, अगर मैं इसको एंगल मानता हूँ, ये मेरा बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, सो आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हाफ। तो यहाँ से हमें क्या क्या कॉमन ले सकता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, हम आई को कॉमन ले सकता है, हम आर को कॉमन ले सकता है, हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 को कॉमन ले सकता है, और डीएल हम लोग लिख सकता है। अब देखो एक सर्कल, एक सर्कमफरेंस का सर्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज हाउ मच, 2 पाई आर। इज इट ओके अप टू दिस? ओके, इफ इट इज ओके, हाँ, सो मैं इसको थोड़ा और अच्छा से लिखूं, that is mu naught by 4 pi I r x square plus r square 3/2 into circumference of a circle 2 pi r। तो देखो यहां से ये 2 pi कटेगा, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज mu naught by 2 I r square x square plus r square 3/2। याद करके देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द ओनली डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट, तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे x मिलता, नॉट r। तो x मिलने का मतलब क्या है, इफ द x इज एट द सेंटर इज 0, तो देन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। पर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड में ये आता है एट सेंटर x इज 0। तो अगर हम x को 0 करेगा, तो देखो यहाँ पे x को अगर हम 0 कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा आर स्क्वायर 3/2। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर क्यूब। तो ये ओवरऑल कितना आया, ये आया म्यू नॉट आई, ये आर हट गया, 2 आर एट द सेंटर। यहाँ तक समझ, हाँ, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आया है, सो नाउ देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये तो हो गया थियोरेटिकल, ऐसे करके डिराइवेशन करके करना पड़ेगा तुम्हें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये जो हम लोग 2 पाई काट दिया है, इसको काटो मत। इसको हम लोग क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो फुल सर्कमफरेंस ही देगा, वो हाफ सर्कमफरेंस भी दे सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये आर स्क्वायर ले लो, बिकॉज ये आर हो जाएगा, और यहाँ पे एक थीटा आएगा। ये थीटा का मतलब क्या है, अगर फुल सर्कल हो गया, अगर फुल सर्कल हो गया तो हम लोग 2 पाई लिखेंगे, हाफ सर्कल हो गया तो पाई लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, और इसका जो स्पेशली जरूरत पड़ता है फॉर द सेंटर। तो सेंटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर के लिए लिखेंगे म्यू नॉट आई, देखो आर स्क्वायर तो कट गया था, म्यू नॉट आई, यहाँ पे हमके एंगल को नहीं काटना है, 4 पाई आर इंटू थीटा। अब अगर फुल सर्कल हुआ थीटा का वैल्यू 2 पाई, हाफ सर्कल हुआ थीटा का वैल्यू पाई। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे, ये दोनों फॉर्मूला, तो हमें न्यूमेरिकल करने में बहुत ही इजी रहेगा। अप टू दिस इज इट ओके फॉर एवरीवन? अप टू दिस इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes. क्वेश्चन, अच्छा, हेडिंग है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। दिस इज द हेडिंग, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। क्वेश्चन नंबर 1, ये है रेडियस, ये है करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
ये है O, यह infinitely long current carrying conducting wire. Radius is R. Question number 3. ये है 3I, ये है O, ये है 2I, ये है I, ये है R, ये है R, ये है R. Question number 4. ये एंगल थीटा है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, ये रेडियस R है. So suppose initially we can try for this 4. Okay, so what we have to find out? We have to find out the magnetic field at point O for each of them. So let's try with the first one. See, this one is on the line because we have to find out the magnetic field here. So this is on the line, this is on the line. So on the line मैंने क्या बोला था? DL and R makes an angle. DL and R makes an angle 0 degree as DL and R makes an angle 0 degree. So no magnetic field. इस लाइन पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. सो यहाँ पे ये दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा. क्यों? ऑन द लाइन है. अब इस सर्कल के लिए होगा. तो सर्कल के लिए देखो मैंने फॉर्मूला क्या बोला था? म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू थीटा. देखो ये एंगल कितना हो गया? यह है 3 पाई बाई 2. सो पाई पाई कैंसिल, कितना हो गया? 3 म्यू नॉट आई बाई 8 आर. अब तुम्हें चाहिए डायरेक्शन. सो देखो करंट का डायरेक्शन क्या है? ये है. सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल, तो थंब इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड outward. So what we can write here? We can write here dot. So you understand the first one? I think you understand the first one. Sir, So see the sec. हाँ बोलो. sir, ওই 3 mu naught I by 8 per r যেটা हाँ. তার পাশে ওই পয়েন্টের ফাংশনটা কি আছে? ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডাইরেকশন আউটওয়ার্ড. কারেন্ট দেখো আমার রাইট হ্যান্ড কার্ল দেখো. হ্যাঁ, কারেন্ট কোন দিকে? এদিকে, এদিকে তো. হ্যাঁ হ্যাঁ, থামটা কোন দিকে? আউটওয়ার্ড, থাম বাইরের দিকে না ভেতরের দিকে? বাইরের দিকে. বাইরের দিকে হলে কি হয়? ডট না ক্রস? ডট. কি হয়? হ্যাঁ, এবার Dot. দেখো এটা দেখো. হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ডট লিখেছি. নাও সি দিস ইজ অন দ্য লাইন. অন দ্য লাइन है ना? अरे है कि नहीं बोलो. हाँ सर. This is on the line cross. So you have only half circle. So what is the magnetic field? Mu naught I 4 pi r. Now the angle, how much pi? So pi you can cancel. So what you have? Mu naught I by 4r. Now the direction, see curl. So thumb is which direction? Thumb is which direction? Tell me. Thumb is which direction? Inward. Inside means cross or dot? Cross. Cross. Inside means cross or dot? Cross. So what you can write? Mu naught I by 4r cross. Hope you understand. Is it okay for everyone? Yes, sir. Okay. Okay. So after that, the third one. After that, the third one. Very, very important. The third one. See how many circular coil you have? 1, 2, 3. So we have to find out the total magnetic field. First one, B1. Tell me the direction, cross or dot? Dot. Dot. Outward. Dot. Second one,
सेकेंड वन Inwards. Cross. थर्ड वन Again dot. Outward. excellent dot. Now what is the formula? Mu naught I. For the first one, what is the value of I? 3i. 4 pi r. Radius is r into circumference is how much? 2 pi dot. देखो तुम्हें धीरे धीरे इतना प्रैक्टिस हो जाएगा, फुल सर्किल होगा तो देखो ये 2 पाई के साथ कट के 2r, तो मैं डायरेक्ट 2i लिख सकता था, लेकिन ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं है तो मैं पहला स्टेप में लिख रहा हूँ. शुरू में तुम लोग लिख सकते हो, बाद में तुम लोग स्टेप जंप कर सकते हो. सेकेंड वन में देखो म्यू नॉट 2i 4 पाई. नाउ द रेडियस इज हाउ मच? 2r. 2r. 2r into 2 pi cross plus mu naught I by 4 pi 3r into 2 pi dot. तो अब देखो मैं यहां से ये 2 pi काटूंगा, तो मैं यहां से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो. 4 pi 2 into 2r मैं डायरेक्ट लिख सकता था, क्रॉस and mu naught I by 2 into 3r into dot. क्या मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था? देखो तो Yes, sir. लिख सकता था ना? हाँ, ये मैं डायरेक्ट लिख सकता था, क्योंकि फुल सर्कल याद रखना, फुल सर्कल मतलब 2 पाई आएगा, तो 2 पाई कट जाएगा, 2 आएगा. हाफ सर्कल होगा तो पाई होगा, पाई के पास साथ कटेगा तो 4r होगा. अगर दिक्कत है तो मत लिखो, नॉर्मल करके करो. अब हमारा काम है कॉमन लेने का. सो म्यू नॉट I बाई 2r को मैंने कॉमन ले लिया. अब कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ पे क्या बचा? 3. यहाँ पे क्या बचा? ये 2 कट गया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 1/3. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 1. 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है. डायरेक्शन क्या है? ये डॉट, ये क्रॉस. डॉट और क्रॉस का मतलब क्या है? अगर मैं इसको तुम्हें डॉट बोल रहा हूं तो क्रॉस क्या होगा? इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा. समझ में आया? तो ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा. अगर ये 10 है, ये 5 है, तो नेट कितना हो जाएगा? 10 - 5 इधर. तो मैंने ओवरऑल यहां से साफ दिख रहा है डॉट का वैल्यू ज्यादा है, तो मैं 3 - 1 प्लस 1/3 ओवरऑल डॉट किया. ये समझ में आया सबको? पहले देखो मैंने प्लस लिखा है, ये जो प्लस लिखा है ये वेक्टर प्लस है, ये डॉट है, ये क्रॉस है. फिर जब हम लोगों ने मैग्नीट्यूड का टर्म में किया, ये 3 डॉट है और ये 1 क्रॉस है, तो 3 डॉट माइनस 1 क्रॉस प्लस 1/3 डॉट, तो ओवरऑल वैल्यू डॉट में आ गया. क्यों? ये 3 से इसको हमने माइनस कर दिया, तो जो 2 आया वो डॉट हो गया. इज इट ओके? Yes, sir. So if it is okay, so what you have mu naught I by 2r, ये हो गया 2, तो 3 3 6 और 1 7, 7/3 डॉट, मतलब हो गया 7 mu naught I by 6r डॉट. समझ में आया? Okay, everyone? Yes, sir. Now see this one. This is on the line cross, on the line cross, on the line cross, on the line cross, on the line cross. तो ये सब ऑन द लाइन है, तो ये सबका सब क्रॉस होगा, तो ये सबका नहीं होगा. तो बचा कौन? 1 2 3. तो हम अगर इसको 1, इसको 2, इसको 3, ये तुम्हारा मन है, तुम ऊपर से भी नीचे आ सकते हो. तो मैग्नेटिक फील्ड B1, तो देखो B1 का क्या होगा? क्रॉस होगा ना डॉट होगा? बोलो. Cross. राइट हैंड कॉल क्रॉस. B2 का Dot. B2 डॉट. B3 का
Cross. Very good. So now for B1, mu naught I 4 pi r. देखो यहाँ पे पूरा वैल्यू लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया है और थीटा का वैल्यू पता नहीं है तो तुम पाई के साथ इसको काट नहीं सकते हो, तो इसीलिए ये थीटा का फॉर्मेट में लिखना ज्यादा अच्छा है. क्रॉस, उसके बाद म्यू नॉट सेम करंट 4 पाई. अब डिस्टेंस कितना हो गया? 2r. 2r थीटा डॉट म्यू नॉट आई 4 पाई 3r थीटा क्रॉस. जाहिर सी बात है, सीधा समझ में आ रहा है. डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस. बड़ा कौन है, डॉट है या क्रॉस है? कौन बड़ा है, क्रॉस या Cross. डॉट? Cross. Cross. नेट वैल्यू, तो नेट वैल्यू मेरा क्रॉस में आएगा. म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा मैंने कॉमन लिया और इसको हम लोग क्रॉस के फॉर्मेट में रखेगा तो 1. अब देखो म्यू नॉट आई थीटा 4 पाई आर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/2. ऑपोजिट है तो माइनस, और फिर ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो प्लस. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस किया, ये ऑपोजिट है माइनस किया, और ओवरऑल आ गया क्रॉस. तो हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा 6 माइनस 3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 8 से 3 गया 5, और ओवरऑल क्रॉस तो आ गया 5 म्यू नॉट आई बाई 6 6 12 24 24 पाई आर थीटा क्रॉस. समझा? तुम्हारा फाइनल रिजल्ट कैसे रहेगा? फाइनल रिजल्ट ऐसे रहेगा. तुम लोगों को बाकी जो है होमवर्क के लिए दूंगा. ये है O, ये करंट ऐसे आया, ये A है, ये B है. कोई जरूरी नहीं है हमेशा रेडियस के फॉर्मेट में देगा, ये ऐसा फॉर्मेट में भी दे सकता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. Question is find the magnetic field. Find magnetic field at O. Same question. I'll give you 4 to 5. देखो, first of all, this is on the line. So as on the line, no magnetic field. Now you have 2, 1 and 2. Okay. So magnetic field for 1. देखो ये करंट कैसे जाएगा, ऐसे, फिर आके ऐसे, तो ये ऐसे. तो B1 is what? Dot or cross? Dot. बोलो बोलो बोलो, अरे बोल कोई. Dot. कुछ बोलता ही नहीं. और बीच, हाँ इतना देर बाद बोलता है. क्रॉस, B2 is cross. Now mu naught I 4 pi, the radius is A and angle is pi. Are you getting my point? Mu naught I 4 pi B pi क्रॉस. अब देखो डिनोमिनेटर में A है, डिनोमिनेटर में B है, कौन बड़ा है? A बड़ा है कि B बड़ा है? B. हाँ A बड़ा है ना B बड़ा है? तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ा होता है तो नेट वैल्यू छोटा होता है कि बड़ा होता है? हाँ, अबे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ता है तो नेट वैल्यू बढ़ता है ना कमता है? तो अब ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? सो हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 को कॉमन ले लिया, 1/a माइनस 1/b डॉट. आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now the second one, 1 2 b
ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, B1 क्रॉस B2 क्रॉस, तो दोनों क्रॉस है। इसका क्या मतलब है? दोनों क्रॉस है मतलब हम लोग दोनों का वैल्यू ऐड करेंगे। कितना? म्यू नॉट आई 4 पाई A इंटू पाई क्रॉस म्यू नॉट आई 4 पाई B इंटू पाई इंटू क्रॉस, पाई पाई कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई बाई 4 1 बाई A प्लस 1 बाई B क्रॉस। होगा ना? नेक्स्ट very very important is magnetic field due to infinitely long straight current carrying conducting wire. So if this is your current carrying conducting wire, देखो ध्यान से समझो, if I is the current carrying conducting wire, P is a point which is at a distance y from this and here, suppose dl is the length. So if we say this one is r, if we say this one is r, this angle is theta, और इसको अगर हम लोग L लेंगे from the distance this one, up to this, is it okay for everyone? समझ में आया? यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो देखो डायरेक्शन के लिए तो ये इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को चाहिए मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। अब तुम ध्यान से अगर देखोगे इसको, अगर इस पे ध्यान से तुम देखोगे, सो देखो dl वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, dl लेंथ वेरिएबल है, एंगल थीटा वेरिएबल है, और ये पोजीशन भी वेरिएबल है। यहाँ पे होगा तो अलग पोजीशन, यहाँ पे होगा तो अलग पोजीशन, तो हर एक जगह पे अलग अलग पोजीशन है। तो इस हर एक जगह पे अलग अलग पोजीशन को लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इस 3 वेरिएबल मतलब 3 इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते नहीं है, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में करने के लिए हम लोगों ने सपोज इस एंगल को फाई माना, तो अगर इस एंगल को फाई माना है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। क्या हम लोग लिख सकते हैं? क्या हम लोग लिख सकते हैं? हाँ यस सर। हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन 90 माइनस फाई दैट इज कॉस फाई लिख सकते हैं। फिर tan फाई देखो क्या होता है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2 लिखा। tan फाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो L बाई वाई, तो यहां से देखो L बाई अगर y है तो L कितना हो गया? L हो गया y tan फाई, तो dl कितना होगा बोलो तो y। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो बोलो। स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, यहाँ पे थीटा क्यों आएगा? फाई है तो dl इज y sec square phi d phi. You can write it also y by cos square phi d phi. Let it be the equation number 3. And cos phi क्या होगा? देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो y by r, यहाँ पे देखो 1 by r स्क्वायर है, तो 1 by r स्क्वायर, ये cos, या पहले r ही रखो नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये नीचे आ जाएगा cos phi by y, which means 1 by r square cos square phi by y square, equation number 4. Is it okay for everyone? Okay for everyone? So अब हम by putting the value of equation 2, 3 and 4 in 1. अगर हम 2, 3, 4 का वैल्यू 1 पे पुट करें तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई एज इट इज, आई मेरा जैसा था वैसा है,
डीएल के जगह पे हमें लेना है ये वाला, तो y बाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई इंटू साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिखेगा कॉस फाई एंड 1 बाई आर स्क्वायर के जगह पे लिखेगा कॉस स्क्वायर फाई बाई वाई, तो कॉस स्क्वायर फाई बाई वाई स्क्वायर। इज इट ओके फॉर एवरीवन? सी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पहले ले लिया, अब डीएल के जगह पे लिया है y बाई कॉस स्क्वायर फाई डी फाई, उसके बाद बचा साइन थीटा इज कॉस फाई, और 1 बाई आर स्क्वायर को हम लोगों ने कॉस स्क्वायर फाई बाई वाई स्क्वायर किया है। यहाँ तक समझ में आया? तो अगर हम इतना Yes, लिख sir. सकता है तो अब हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि मेरा इस सब का काम हो गया है, इसका भी इवन काम हो गया है। अब हम लोग करेंगे कट्टम कुट्टी, तो इसके साथ ये कट गया, इसके साथ ये कटा, तो बचा क्या? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ध्यान से देखो, आई कॉस फाई डी फाई बाई वाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 मानूं तो ये मेरा देखो ओनली वन वेरिएबल है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट, ओनली एंगल इज वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो मैंने दो लाइन दिया है, एक डॉट डीप लाइन, एक डॉटेड लाइन। तो डीप लाइन जो है, इस डीप लाइन का मतलब है कि मे बी द वायर इज फिक्स्ड, मींस नॉट अ इनफाइनाइट, फाइनाइट, और अगर हम इसको इनफाइनाइट कर दे तो डॉटेड लाइन ऊपर, डॉटेड लाइन नीचे। तो पहले हम लोगों ने मान लिया फिक्स, फिर इसको हम लोग मतलब फाइनाइट, फिर इसको इनफाइनाइट करेंगे। तो अगर हम ये और ये मेरा दो छोर है, मतलब दो एंड है, तो यहां से जो एंगल लिया, अगर मैं पहला एंगल लूं तो ये बोलो, ये जो एंगल लिया क्लॉकवाइज लिया कि एंटी क्लॉकवाइज लिया? क्लॉकवाइज लिया कि एंटी क्लॉकवाइज लिया? अरे Clockwise. क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हम लोग वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव और पॉजिटिव, एंगल का वैल्यू क्या लेता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. क्लॉकवाइज में एंगल नेगेटिव, सो -φ1, और ये वाला एंगल देखो क्लॉकवाइज, और तुम लोग खुद ही विचार करो ना, जब ये लेता है तो पॉजिटिव लेता है, जब ये लेता है तो नेगेटिव लेता है। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो पॉजिटिव। तो मैंने दो वैल्यू लिया है, φ1 टू φ2, दो एंगल फ्रॉम दिस सेंट्रल लाइन, φ1 एंड φ2। φ1 को नेगेटिव लिया है एंड φ2 को पॉजिटिव लिया है। सो अब हम लोग लिखेंगे टू फाइंड आउट टोटल magnetic field, taking integration both side with proper limit. So integration of dv, if you can write at p also, और नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू नॉट आई 4 पाई y इंटीग्रेशन ऑफ cos phi d phi minus phi1 phi2, और इसको हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान सकते हैं। तो टेल मी एनीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई 4 पाई y, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो साइन फाई माइनस φ1 φ2, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट आई 4 पाई y साइन φ2 माइनस साइन माइनस ऑफ माइनस साइन φ1, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई y साइन φ1 प्लस साइन φ2। देखो इसीलिए हम लोग एक्चुअली इधर वाला एंगल लेते हैं। अगर हम इधर वाला एंगल नहीं लेके ये थीटा से ही लेते तो तुम्हें क्या होता,
यहाँ पे माइनस में आता और ये साइन की जगह पे कॉस आता, तो कॉस आने से एक प्लस एक माइनस तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों एंगल अंदर वाला होगा और मैग्नीट्यूड में दोनों प्लस होगा, हमारे लिए इजी हो गया। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दिस फॉर्मूला देखो अगर मुझे बोले फॉर इनफाइनिटली लॉन्ग, अगर मुझे बोले फॉर इनफाइनिटली लॉन्ग का मतलब क्या है, ये जो एंगल था देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये एंगल बढ़ते 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 जब इनफाइनिट मतलब इतना दूर की ऑलमोस्ट स्ट्रेट, तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो इन दैट केस phi1 फॉर इनफाइनिटली लॉन्ग, phi1 90 डिग्री and phi2 also 90 degree. So what happened, B is equals to mu naught I 4 pi y sin 90 degree plus sin 90 degree, कितना हो गया, mu naught I by 4 pi 1 plus 1, that is mu naught I by 2 pi y, ये हो गया इनफाइनिटली लॉन्ग। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, कभी कभी क्वेश्चन में इनफाइनिट नहीं देके सेमी इनफाइनिट देता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेमी इनफाइनिट? जैसे मानो ये मेरा पॉइंट है और ये y डिस्टेंस है और ये वायर इधर से इंफिनिटी है, तो देखो ये जो है ये एंगल ऐसे जा रहा था 90, ऐसे आके 0, तो एक एंगल क्या हो गया, सपोज phi1 इज 0 डिग्री एंड phi2 इज 90 डिग्री फॉर सेमी इंफिनिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई वाई साइन 0 प्लस साइन 90 डिग्री, सो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई वाई। तो तुम इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हो और तुम इसका वैल्यू इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, जितना एंगल न्यूमेरिकल के लिए दिस इज द बेस्ट वन। इज इट ओके? इसका ऊपर जो न्यूमेरिकल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि सब एक साथ कराएंगे तुम लोगों का दिमाग फट जाएगा, ठीक है? ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में